male, means any boy or any man. We use pronoun he. When we talk about any girl, any lady, any woman, then we use pronoun she. Then we talk about any animal and anything. Then we use pronoun it. When there are more than one candidates or things, so we use word they. So these all are pronouns. Okay. Now just tell me, what are verbs? Action words are called verbs. You know that very well. Look, talk, eat, walk, run. These all are action words, and all action words are called verb. I'm writing here. Okay. These are pronouns. Verb. Run, eat, sit, drink. Cook. These all are verbs, all action word, which actions we do in our regular life. These action words are called verb. And is, am, are helping verbs. Who supports noun and verbs? Both. To support noun and verb both, we use helping verb. And helping verb are is, am, are. H means helping, V means verb, was, were, will, these all are helping verbs. So this is a table of pronouns, verb and helping verb. Now you can see in your topic is, am, are. That means these are helping verbs and the use of I and G. R and G will be used at their place when the action is going on in a continuous way. Means the movement and the action is continuously in move, in going method, in going manner. Okay. So now we will go and put is, am, are with ing. Ing will always add with verbs. Ing will always add with verb like running, eating, cooking, drinking, sitting. Okay. Now verb plus ing. I hope this is clear to you all. Ing always put with verb. That means verb plus ing. So today we will talk about helping verb plus verb with ing. Is, am, are those helping verbs which are used for show present time. Present time means that thing which is going to happen or which are happen in today. Okay. For today we use is, am, are. And ing shows the movement which is going on. Okay. Is will use with singular. Singular means anyone name, anyone animal's name, anyone thing's name.
always used with singulars and he, she, it. Okay, singular, any name. Any name, I am going to take a name Riya and Rahul. Okay, and he, she, it. Are used with any plurals like apples, bananas, children's. These all are plurals. If there is one apple, we say this is an apple. This is an apple. If there are more than one apples, then what we say? These are apples or those are apples. Okay. So are we used with plurals for many things or objects. And they, these, those. And this is clear that am always follows with I. Am always follows I. That is clear. Is for singulars, are for plurals, and am for only I. Okay. Now look at the words. Okay. Few words are written here. Few are noun and few are pronoun. As like Ram is a noun. This is the name of a person. But I is a pronoun. I represent myself. They is also pronoun. When there are more than one object, we use the word they for peoples and animals. Okay. Sita and Geeta, these are nouns because these are name of girls. Sita is a girl and Geeta is a girl. And he is pronoun. At the place of any boy's name, we always use he for pronoun. Okay? Few are noun here and few are pronoun here. But we have to put helping verbs here according to singular and plurals. Okay? So we use which helping verb we use with I? We always use am with I. Okay? Am with I. So I am going to write am. I am. Then Ram. Ram is a singular one. Single candidate is a Ram. Ram is the name of a boy. So that is a single person. So we use is for singular. We use always is. Now they. They means there are candidates who are more than one. When we talk about more than one candidates, we use word they. They are talking, they are eating, they are crying. Okay? So they. With they we all use. We ever use are with they. Okay? Because they are plural. Sita and Geeta. Sita is a girl and Geeta is also a girl. So there are two candidates. Sita and Geeta. One candidate is Sita and second candidate is Geeta. There are two candidates. And when there is more than one candidate, these are plural. It becomes plural. So with plural we always use are. With plural we always use are. Now he. He is used as the place of any male name. Male name means any boy's name or any man's name. Okay. So he is a pronoun and with he we always use as a helping verb is. He is. So I hope that is clear to you all where we have to put is, where we have to put are and where we have to put am. Am will always stands with I. Okay. Now ing. Ing always adds with verb. Verb are.
Sita and Geeta are going to market. He is playing. Yes. So you know that which are action words? Eat is action word, talk is action word, go is an action word, and play is also an action word. So we always put ing with action words, okay, to show the continuity. That means the action is going on in present time. Now I'm going to explain in Hindi for your comfort. Is MR हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. इज हमेशा किसी भी एक इंसान हो, मतलब व्यक्ति हो, वस्तु हो या जानवर हो, पर कोई एक होना चाहिए. तो हम क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं. मतलब किसी भी सिंगुलर थिंग के साथ हम इसका यूज करते हैं. किसी भी प्लूरल थिंग के साथ, मतलब एक से ज्यादा जब ऑब्जेक्ट होते हैं तब हम आर का यूज करते हैं. दीज, दोज, इनके साथ में हम हमेशा आर का यूज करते हैं. ही, शी, इट के साथ में इज का यूज करते हैं. और आई के साथ में हम हमेशा एम का यूज करते हैं. एम का यूज और कहीं नहीं होता है, सिर्फ आई के साथ में होता है. और आईएनजी का सिंपल सा मतलब होता है रहा है. आईएनजी रहा, मतलब जो काम लगातार हो रहा है, अभी भी हो रहा है, उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं. और आईएनजी हमेशा वर्ब के साथ में लगता है. वर्ब क्रिया, जो हम काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है. एक्शन वर्ड्स वर्ब ही होते हैं. तो जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जैसे ईट, कुक, इन सब के साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं. जैसे देखिए, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ. मैं खाना बना रहा हूँ. रहा है का यूज हुआ ना यहाँ पर. राम इज ईटिंग अ बनाना, राम एक बनाना खा रहा है. दे आर टॉकिंग, वे बात कर रहे हैं. सीता एंड गीता आर गोइंग टू मार्केट, सीता और गीता बाजार जा रही हैं. ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है. रहा है मतलब वो काम हो रहा है. तो जब कोई भी एक्शन हो रहा है, मतलब वो काम कंटिन्यू हो रहा है, तब हम क्या यूज करते हैं? आईएनजी. एज लाइक आई एम टीचिंग टू यू ऑल, मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ. ओके, तो जब रहा हूँ, रही हूँ आता है, तब हम वहां पे किसका यूज करते हैं? आईएनजी का यूज हम करते हैं. और इस एमआर का यूज आपको पता चल गया है. इज, एम, आर. इज और आर का मतलब है होता है, और एम का मतलब हूँ होता है. मैं के साथ हमेशा हूँ यूज होता है. मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आई के साथ एम का यूज होता है. ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर मतलब किसी एक नाम के साथ में हमेशा इज का यूज होता है. दीज, दोज के साथ में आर का यूज होता है. और किसी भी प्लूरल मतलब जैसे दो नाम लिखे हुए सीता और गीता, टू नेम्स है ना ये. और जब टू नेम्स हो गए तो मतलब वो प्लूरल हो गया ना. वन नेम होता है तो सिंगुलर होता है, टू नेम्स हो गए तो प्लूरल हो गया. तो जब प्लूरल हो गया तो हमने किसका यूज किया? आर का यूज किया, है ना. ऐसे ही जब सिंगुलर नेम होता है तो इज का यूज करते हैं. जैसे राम के साथ हमने इसका यूज किया क्योंकि राम सिंगुलर है ना, एक लड़का है राम, तो हमने इसका यूज किया. और जब ये दो हो गए, सीता और गीता दो लड़कियां हो गई, तब हमने आर का यूज किया. राम एंड श्याम एंड मोहन तीनों
Good morning students. This is your second period and this period is of Hindi language. So take out your Hindi language book and open up the page number 24. Class first, open page number 24. स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी लैंग्वेज का पीरियड है, आपको पता है, और आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज की बुक ओपन करनी है पेज नंबर 24। ओके, पेज नंबर 24 में पार्ट 6 वचन दिया गया है। पार्ट 6 वचन जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। आपकी पिछली क्लास में मैंने आपको टर्म सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर था, तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया था। आज मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन करा रही हूँ। वचन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया वचन किसे कहते हैं। एक है या अनेक, इसके लिए बताया था एक है या अनेक, जो शब्द यह बतलाए वे शब्द वचन कहलाए। वचन से हम किसी वस्तु व्यक्ति की गिनती करते हैं, ठीक है। वचन अर्थात संख्या या संख्या का बोध कराना, ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु या स्थान की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु या स्थान की संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगी, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संख्या का बोध हो, या स्थान की संख्या का बोध हो, वचन कहलाता है, ठीक है। वचन कहलाता है, ठीक है। जैसे पत्ता, पत्ते। तो यहाँ पर बच्चों पत्ता शब्द से हमें इसकी संख्या का बोध हो रहा है कि पत्ता कितना है, एक है, क्योंकि उसका रूप, उसके पत्ता रूप से एक शब्द संख्या के रूप से हमें पता चला कि एक है, और पत्ते अर्थात कई। और मैंने बताया भी था कि वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा आपका होता है बहुवचन, ठीक है। तो वचन क्या है, किसी संख्या के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। और वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से हमें व्यक्ति वस्तु की एक संख्या में एक होने का ज्ञान होता है, और वही बहुवचन क्या है, जब किसी शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संख्या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, वो बहुवचन कहलाता है, ठीक है। जैसे पत्ता एक वचन, पत्ते बहुवचन, लड़के, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, लड़की, लड़कियाँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ एक वचन और बहुवचन रूप दिए थे जिन्हें आपको याद करना था, बहुवचन में उन्हें बनाकर उन्हें याद करना था। जैसे गुड़िया का गुड़ियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, बेटा बेटे। बेटा क्या है, एक वचन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एक्सरसाइज अलग से दी, आपने बुक वाली इतनी एक्सरसाइजेस कर ली थी। इसके अलावा मैंने आपको बुकलेट दी थी, बुकलेट में भी आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई थी जो कि वचन पर आधारित थी। तो स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट टर्म में पहले चैप्टर 5 मिला होगा, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, वो बुकलेट में आपको मिला था। चैप्टर 5 का रिवीजन मैं इसके बाद वाली क्लास में करवा दूँगी, ठीक है। तो आज हम पहले चैप्टर 6 का रिवीजन करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक वचन और बहुवचन शब्दों को
के पेयर बना के लिखने हो या एक वचन और बहुवचन शब्दों को छांटना हो, तो एक वचन में जो शब्द है उस पर हम सर्कल लगाएंगे और जो बहुवचन में है उस पर हम रेखा खींचेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, और जो एक वचन में उसे सर्कल करेंगे। तो पहला शब्द लिखा हुआ है लड़का। लड़का क्या है? एक वचन है, मैंने क्या बताया है, एक वचन में हम गोला लगाएंगे, ठीक है, और बहुवचन में क्या करना है, रेखा खींचनी है, ठीक है, रेखांकित करना है। लड़का, लड़का शब्द क्या है आप जानते हैं, अभी मैंने बता दी क्या है, एक वचन है, तो हम इसमें सर्कल लगा देंगे। और आगे चलते हैं, आगे क्या है, पत्ता। पत्ता शब्द क्या है, कैसा है, कितने पत्तों का ज्ञान हो रहा है, एक का, तो ये क्या है, एक वचन है, तो इसमें सर्कल लगाएंगे। फिर इसी तरह हम आगे बढ़े तो मिला गुड़िया। गुड़िया, गुड़िया कैसा शब्द है, जब भी आपका बड़ा की मात्रा के साथ अनुस्वार या चंद्र बिंदु होता है वहां पर क्या होता है, बहुवचन, गुड़िया, कई सारी, ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर देंगे, इसमें बहुत से का ज्ञान हो रहा है। फिर एक कुर्सी, कितनी कुर्सियों का ज्ञान हो रहा है, एक का, तो ये कैसा है, एक वचन है, तो आप यहाँ पर सर्कल लगा देंगे। फिर एक कुर्सियाँ, कुर्सी एक और कुर्सियाँ बहुत सी, तो ये बहुवचन हो गया। पंखा, पंखा कैसा है, एक वचन, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्कल लगा देंगे। लड़के, लड़के अर्थात बहुत से लड़के, बहुत लोगों की बात हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा। फिर क्या है, पत्ते। पत्ते भी क्या है, बहुवचन का प्रयोग कराते हैं, संख्या में अधिक होने का ज्ञान कराते हैं। इसी तरह पंखे, पंखे शब्द से भी हमें संख्या में अधिक होने का ज्ञान हो रहा है, तो इसमें भी हम रेखा खींचेंगे। फिर गुड़िया, अब देखिए गुड़िया यानी बहुत सी, और गुड़िया, गुड़िया अर्थात एक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे। फिर एक घड़ा, घड़ा से कितने घड़ों की संख्या का ज्ञान हो रहा है, एक, तो ये क्या है, एक वचन, तो इसमें सर्कल लगाएंगे। इसी तरह से तोता, तोता क्या है, एक का ज्ञान कराता है, जब हम तोता कहते हैं तो एक वचन है, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तोते, तो तोते शब्द से हमें संख्या में कई होने का ज्ञान होता है। इसी प्रकार घड़े, ठीक है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपने एक वचन और बहुवचन हमने कर लिया, यहाँ पर हमें एक और कॉमन चीज मिल रही है कि हर एक शब्द का जो भी एक वचन में लिखा है उसका बहुवचन भी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो अगर इसी अभ्यासकार में ये अभ्यासकार होता कि एक वचन और बहुवचन के जोड़े बनाकर लिखो, अर्थात जो जिसका बहुवचन या एक वचन है उसको उसके आमने सामने लिखो, तो लड़का के साथ हम क्या लिखते, लड़के, इसका इसके साथ, पत्ता पत्ते, गुड़िया गुड़िया, तो इस प्रकार हम कॉलम बना के इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से आपको जो ये वाली एक्सरसाइजेस दी गई थी, तो मैंने आपको ये अलग करके, जैसे यहाँ पर एक वचन और बहुवचन उनके लिखकर दिए थे, आपने ये किया था, और इसके नीचे भी आपको मैंने ये कलर करने के लिए दिया था और आपने कर भी लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा वचन बदलने से क्रिया में भी अंतर आता है, उसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको जैसे मैंने यहाँ पर एक और अभ्यासकार आपको दिया हुआ है आपके समझने के लिए, आपकी एक्सरसाइज ऐसे एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 3 में दिया गया था उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये एक्सरसाइज आपकी थी जो कि आपने करी थी पहले, और आज मैं आपको रिवीजन भी इस पर आधारित एक और एक्सरसाइज बना रही हूँ कि हम सही शब्द का चुनाव कैसे करते हैं, कहाँ पर क्या आता है, ठीक है। जैसे पहला मैंने आपको दिया हुआ है उड़ रही है, पहले डैश है, खाली स्थान है, और फिर लिखा है उड़ रही है, और दूसरा है उड़ रही, यहाँ पर देखिए बेटा मैंने बिंदी रखी हुई है, उड़ रही है, ठीक है। तो आप बताइए कि किसमें, और यहाँ पर 2 इसके विकल्प है, एक में आएगा चिड़िया और एक में आएगा चिड़िया, तो किसमें चिड़िया आएगा और किसमें चिड़िया आएगा। जब एक वचन होता है तो हमारी क्रिया क्या रहती है, और जब बहुवचन हो जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, अर्थात बिंदी आ जाती है। तो चिड़िया, एक चिड़िया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिड़िया उड़ रही है, एक है,
और चिड़िया अर्थात बहुत सी हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैं। चिड़िया उड़ रही है। ये गलतियां हैं जो हिंदी की आप गलतियां करते हो, ये नहीं करेंगे अब आप, ठीक है। इसी प्रकार जब हम किसी बड़े का नाम लेते हैं तो वो यहाँ पर भले ही एक हो लेकिन हम उसके साथ बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे अध्यापक आ रहे हैं, न कि आ रहा है, जबकि वो एक है लेकिन वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं महापुरुषों के लिए, अपने से बड़ों के लिए आदर सम्मान दिखाने के लिए। दूसरा है राम ने एक खरीदी। तो राम ने एक खरीदी, राम ने 3 खरीदी, बिंदी रखी हुई है, देखिए राम ने 3 खरीदी, राम ने 1 खरीदी। और विकल्प है आपकी पुस्तक और पुस्तकें। तो यहाँ पर आपको 2 तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक तो खरीदी यानी एक ली होगी, ठीक है, और यहाँ पर एक दिया भी गया है तो राम ने क्या है, पुस्तक। 3 पुस्तक तो होगी नहीं, 3 पुस्तकें क्योंकि बहुवचन है, और एक के साथ क्या आएगा, पुस्तक। राम ने 1 पुस्तक खरीदी और 3 क्या हो जाएंगे, बहुवचन अर्थात पुस्तकें खरीदी। ओके, तो इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य जो आपका तीसरा अभ्यास कार्य दिया गया है, इसे मैंने आपको पहले कराया था लेकिन आपको आज फिर ये अभ्यास कार्य करना है। और इसे करके आप इसके ऑप्शन लिखकर इसे रफ कॉपी में करेंगे और दोबारा फिर से फिल करेंगे, बुक से देख कर नहीं, बिना देखे, ठीक है। इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे, पुनः रिवीजन करेंगे और पाठ याद भी करेंगे। ओके, तो बच्चों आज मैंने आपको फिर से वचन का रिवीजन कराया। वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वे वचन कहलाते हैं। वचन के 2 रूप हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से हमें संख्या में 1 होने का ज्ञान होता है, बहुवचन से हमें संख्या में बहुत होने का ज्ञान होता है, 1 से अधिक होने का ज्ञान होता है। मैंने आपको 2-3 एक्सरसाइजेस भी बताई जो कि आपको एक वचन और बहुवचन समझने में आपकी सहायता करेंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ यू नो इन योर होमवर्क यू हैव टू रिपीट दिस चैप्टर अगेन। आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है एंड जो भी आपको एक्सरसाइज बुक में दी गई है, आपको बुकलेट में एक्सरसाइज दी गई है, वो एक्सरसाइजेस आप कंप्लीट कर लेंगे और अपनी कॉपी में भी चैप्टर 6 कंप्लीट कर लेंगे। और एक बात और याद रखिए, जो भी आपको बुकलेट में एक्सरसाइजेस दी गई हैं वो एक्सरसाइजेस आपको कॉपी में, नोटबुक में भी करनी है। ओके, so students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your homework and bye bye, take care.